Good morning everybody. My name is Rumi Sarkar. I am a science teacher and today I am going to teach you a very interesting topic that is related to your day-to-day life. Have you ever thought that why it becomes very difficult for you to walk on sand, but when you see a camel it walks so smoothly? Why this happens? This is due to the camel has broad feet and which makes it easier for the camel to walk on the sand. Like for example, when you use knife for cutting vegetables or fruit, you use this position, you hold this knife in this position to cut the vegetables. Why you use this position? Why you don't use like this? You bend the knife and then you cut the vegetables. Or when you have saw your elders, they also cut the vegetables or fruits like this. Why this happens? This is because when you bend the knife, then the area of the contact of the knife to that of the vegetable is much less, and when the area of contact is much less, then the force applied will be more effective. That is why you bend the knife. Similarly, when you wear high heels, what happens? Your feet pains and it becomes quite uncomfortable for you to wear that. This happens because when you are wearing a heel, then the area of contact between the heel and the ground will be much less. When you are using a flat footwear जब आप पहनते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, बट व्हेन यू आर वियरिंग अ हील देन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस एंड द फोर्स अप्लाइड बाय योर बॉडी ओवर योर हील्स इंक्रीजेस, and that is why when force increases your feet feels pain and it becomes uncomfortable for you to wear that. Similarly, we were discussing about the camel. So the camel is also able to walk so smoothly on the sand without sinking its feet. Its feet are not sinking and it is walking so smoothly. So here is also the area of contact is increasing. The area of contact between its 4 feet and the sand is increasing. So the force applied by the body of the camel over the sand is being distributed, and that is why its legs are not sinking and it is walking so smoothly. But when you walk on the sand, then you are walking on 2 feet. You are walking on 2 feet and your legs are not so broad, your feet is not so broad, so the force applied is much more and your feet sinks down. जब आप चलते हैं तो आप 2 पाँव में चलते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पाँव भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, आपके फीट भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो आपका जो फोर्स लग रहा है आपके बॉडी के थ्रू सैंड पर, ये फोर्स ज़्यादा लगता है और आपका पाँव धंस जाता है. लेकिन यही जो कैमल है, कैमल का जो फोर्स है वो चारों पाँव में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि वो आराम से चल पाता है. सारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों पाँव में, जिसके वजह से उसके पाँव धंस नहीं रहे हैं. सो इससे हम क्या देख रहे हैं कि लेसर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मोर इफेक्टिव इज़ द फोर्स. जहाँ पे लेसर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ जो हमारा फोर्स है वो ज़्यादा लगता है. तो ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर दिस? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड? सो दिस टर्म इज कॉल्ड प्रेशर. This is called pressure. Force applied on unit area of the surface. Force applied on unit area of the surface. आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू. फोर्स जो हम अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर यूजिंग दिस नाइफ, यू आर अप्लाइंग फोर्स बाय योर हैंड, आप अपने हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यूनिट एरिया, जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करें उसके यूनिट एरिया पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, ठीक है,
यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, तो आपका फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जब फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। मतलब आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आप जो अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट में, यहाँ आपका प्रेशर बन रहा है जो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस तरह से यूज़ किया तो प्रेशर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। उसी तरह से जैसे कैमल जो है, कैमल में क्या हो रहा था, हमारा जो उसका जो फोर्स है वो फैल जा रहा था उसके चारों पाँव में, बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज ड्यू टू इट्स 4 फीट्स एंड इट 4 फीट्स वेर ब्रॉड, चौड़ा चौड़ा फीट है ना, इसीलिए वहाँ पे हमारा क्या हो गया कि फोर्स हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एबल टू वॉक सो स्मूथली। जब हम हाई हील पहनते हैं उसमें भी वही है कि हाई हील में होता है नोकीला उसका हील, और उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कम होता है इन रेस्पेक्ट टू दी फ्लैट फुटवेयर्स। जो फ्लैट फुटवेयर पहनते हैं आप, उसका कैसा रहता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़मीन पे आपका पाँव ज़्यादा आराम से रहता है, और हाई हील्स में कैसा रहता है, उसमें भी बेंट रहता है, इस तरह से टेढ़ा होता है, आपने देखा होगा। तो इसी वजह से आपका जो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आपके पाँव पर वो ज़्यादा हो जाता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है हील्स के वजह से, दैट इज़ वाई द फोर्स इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर प्रेशर is applied on your feet and it becomes very uncomfortable for you to wear those things. So this is pressure, and this happens in our day to day life. We experience it every day in our day to day life. For example, I am standing in front of you and I can feel the pressure on my feet. मैं अपने प्रेशर को फील कर सकती हूँ. How? My body is applying force on my feet and the area of contact is less, so I can feel the pressure. Similarly, you can also feel the air which is around us, you know that air is always around us, it is also exerting pressure on your body, but it is negligible, you cannot feel that, but air is also exerting pressure on you, and that is atmospheric pressure, because the atmosphere is exerting pressure. So in this we can see that the force has two main components. One is the pressure has two main components. First is force and the second one is area. So these two units determine the pressure. So you can see that how can we determine the pressure. So pressure can be determined by P is equal to force applied on unit area. As you can see that force applied on unit area determines the pressure. So force and pressure are directly proportional, means if force increases, pressure also increases, and area is inversely proportional to pressure. When area increases, pressure decreases. Okay, when for example we have seen in the camel case, कैमल में हमने क्या देखा था कि उसका एरिया क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, है ना, उसके चार पाँव में उसके ब्रॉड फीट्स की वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जा रहा था, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर कम हो जा रहा था। प्रेशर कम होने के वजह से उसके पाँव बालू में नहीं धंस रहे थे। सो व्हेन एरिया इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज, एंड व्हेन एरिया डिक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज। इसमें क्या था कि जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द हील्स विच यू यूज़ और कटिंग द vegetables with your knife is an example of this. So now what will be the unit of this pressure? What is the unit of force? Unit of force is Newton. We symbolizes it with capital N, and area meter square. So what is the unit of pressure? Newton per meter square. This is the unit. But there is an SI unit of pressure also, which is Pascal. This is the SI unit, and this unit you have determined from this formula.
ये जो आपने यूनिट निकाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी वही चीज़ है, इसको आपने डिराइव किया फ्रॉम दी फार्मूला। इस फार्मूला से आपने इसके यूनिट को डिटरमाइन किया, डिराइव किया, और वैसे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने ये देख लिया दैट प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आपने समझ लिया। सो द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया यू कैन सी इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल say this is my handbag and this strip is not so broad, it is narrow band, ठीक है, इसका जो strip है this is narrow and when I am putting this bag on my shoulder then it is also applying a pressure on me on my shoulder। इसको जब मैंने अपने कंधे पर डाला तो इसने भी प्रेशर डाला है मेरे कंधे पर। ये जितना प्रेशर डालेगा उसके रेस्पेक्ट में इफ़ आई एम यूजिंग अ ब्रॉड स्ट्रिप बैग, ब्रॉड स्ट्रिप मतलब इसका जो ये स्ट्रिप होगा ये चौड़ा होगा, उसको अगर मैं रखूँ और दोनों में एक ही वेट हो, एक ही वेट दोनों का हो, मास एक ही हो, तब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट विच बैग विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन माई शोल्डर? कौन सा बैग ज़्यादा प्रेशर डालेगा? ऑब्वियसली the small strip band, the narrow strip band, because the area of contact between this narrow strip to my shoulder is less। इसका एरिया कम हो जा रहा है जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा मेरे शोल्डर पर। बट इफ़ आई एम यूजिंग अ ब्रॉड स्ट्रिप बैंड, वो प्रेशर मेरा क्या कर देगा, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा तो प्रेशर उसका घट जाएगा। इसीलिए दैट इज़ वाई द स्टूडेंट्स आर आज दे आर रिकमेंडेड टू यूज़ ब्रॉड स्ट्रिप स्कूल बैग्स। बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि वो ब्रॉड स्ट्रिप स्कूल बैग्स यूज़ करें ताकि उनके कंधे का बोझ बढ़ जाए और आपको दर्द ना हो कंधे पर। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज़। इसके अलावा भी देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन योर डे टू डे लाइफ वेयर यू कैन सी द एक्शन ऑफ प्रेशर। सो फॉर टुडे I will wrap up this topic up to this, and in the next class we will discuss about the relation between pressure and area and the pressure exerted by the fluids, how fluid exert pressure on us. Thank you so much.